very good afternoon to everyone over here. I am Smriti Sharma. I am the Center Head for Startup Accelerator Chamber of Commerce, Gurugram. और आज के हमारे सेशन के लिए we are very happy to have Mr. Vikas Sharma with us. जैसे कि आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा, and I would also like to say यहाँ पे ना थोड़ा लैग हो रहा है. I'm really sorry, but कुछ दिनों से ना हमारे यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है. तो हो सकता है जैसे अभी भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, तो थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आएगी, बट आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एडजस्ट. एंड अगर ड्रॉप आउट हो जाएगा तो विल डेफिनेटली ज्वाइन अगेन, बट आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर दैट इन एडवांस. तो आज का टॉपिक आई एम श्योर आप सबने गेस कर लिया होगा क्या है. एनीवन? आप बोल भी सकते हैं. What is the topic? Website. But what about website is the topic? Make your website in a day. And we are very, very grateful for Mr. Vikas Sharma, who is a tech expert. And he's excellent. He's mastered 100 websites. He's created more, I believe, crores of websites he would have created. But we are very, very grateful to him for taking out time for our incubated startups. Sir, thank you very much. And it means a lot कि आप अपना इतना कीमती time and अपनी knowledge हमारे बच्चों के साथ share करेंगे. So it's my honor to speak in front of you, ma'am. You have already a lot of experience in your domain. So yes, thank you so much for inviting me again. So thank you, sir, for being here. And as you can already see that we have an interactive audience. Everyone is eagerly waiting for you, sir. So on this note, let's learn, and I really hope कि आज के सेशन के बाद हम सब अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर देंगे. Over to you, sir. Thank you so much, Smriti ma'am. Audience or candidates, or I can say students, maybe some of you are still studying, right? So I would like to thank all of you, and especially sir, ये वापस आ रही है मुझे. तो हमारे जो सेंटर हेड है हिसार से, he is also here. So धर्मवीर सिंह जी, and Sunand sir is also there, and I really appreciate that. Thank you so much, guys, for inviting me again. And let's start with the topic. I'll be explaining a little bit about myself. My introduction. My name is Vikas, and I'm working in this field for the last 18 years. Right. So I have designed not many sites. Maybe hundreds of sites, not crores. लेकिन इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपको इसका इंट्रोडक्टरी नॉलेज दे सकता हूँ. I mean, see, you need not to be an expert these days. है ना, आज का जो era है, most of the students or most of the candidates among you, जो young entrepreneur हैं, वो पहले से ही इतना सब कुछ जानते होते हैं, right? So still, if a few of you are not aware about much about the computers, तब भी मैं ये कहूँगा कि it will take a little bit time and effort, but you'll still able to design a website, right? It's not a big game these days. So of course, let's start with the topic then. Let me share the screen now. Alright. तो मैं स्टार्ट करने से पहले एक और आपको बात बता दूं कि ये जो सेशन जो हमारा चल रहा है, इसको हम थोड़ा इंटरेक्टिव बना लेंगे. आप बीच में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं, and just unmute yourself and ask a query. Otherwise, you can raise your hand. And I'm sure Smriti ma'am is going to host this. मैम आप थोड़ा सा कोई क्वेरी करता है तो आप जस्ट मुझे बता दीजिएगा, because I'll be sharing the screen, so I won't be able to see the message instantly. Right? So let's start, guys. So I hope the screen is visible. Yes, sir. Yes, all right.
Thank you for the confirmation, guys. Let's start with this. I'll start with this. तो स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है आपको, this is today's topic. Make your website in a day. I would say कि in a day आप actually ना वेबसाइट का प्री लॉन्च कर सकते हो एक तरह से, मतलब आप एक इंट्रोडक्टरी वेबसाइट दे सकते हो अपने लिए। एक दिन के अंदर आपके लिए ये पॉसिबल है। आप एक पेज क्रिएट कीजिए जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस हो आपकी सर्विसेज से लेकर के, and what you can put in there is your important information. So क्या होता है कि वेबसाइट के अंदर ज्यादातर जब हम एक दिन की बात करते हैं तो उसमें हम अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं, तो उस समय आप बहुत सारी चीजें एकदम से नहीं डाल सकते। विद इन अ डे का मतलब है कि आप वही इंपॉर्टेंट चीजें डालें जो आपके प्रोडक्ट को डिफाइन करती हो। लाइक इफ आई से कि आप में से कोई एक बच्चा जिसका अपना बिजनेस है, लाइक, और वो अपने बिजनेस का नाम थोड़ा सा प्रमोट करना चाहता है, सो इट इज अ प्रमोशनल वेबसाइट। तो उस समय हम ब्रांड को मार्केट में लॉन्च करते हैं। आप सबसे पहले ब्रांड में जाते हैं लोगो के ऊपर, राइट? आप सब जो एंटरप्रेन्योर हैं उसके अंदर मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव अ लोगो, है ना? सभी के पास होगा अपना अपना लोगो, जो है ब्रांड का लोगो तो जरूर होगा, ऐसा है? यस सर। Yes, sir. ऑलराइट, तो मेक इट अ गुड वन। देखिए आपका ब्रांड है वो, मैं वेबसाइट को हमेशा ब्रांड से देखता हूं। अगर कोई भी चीज आप लॉन्च कर रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने स्टार्टअप से रिलेटेड, तो मेक श्योर कि आप अपना जो ब्रांड मेकिंग है वो स्ट्रॉन्ग रखें, यानी कि वो आपका लाइफ लॉन्ग चलना है। तो लोगो ऐसा होगा जो सुप्रीम होगा, है ना? लोगो इज सुप्रीमो, मतलब कि वो आप देखेंगे तो हर जगह पे मिलता है, हर कंटेंट पे मिलेगा, हर जगह, मतलब बिजनेस कार्ड से लेके वेबसाइट तक, ऐप से लेकर के, और उसके बाद बड़े बड़े होर्डिंग्स तक या फिर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स तक, तो लोगो आपका बेटर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ बताऊंगा कि कैसे आप वेबसाइट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई मीन देयर आर फ्यू टेक्नोलॉजीज जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं आपकी वेबसाइट के लिए। अगर आप एक वेब एप्लीकेशन बनाने की बात कर रहे हैं तो फिर आप कोई बैक एंड जो प्रोग्रामिंग रहती है, डेवलपमेंट रहती है, वो करेंगे। जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पीछे काम कर रही हो, है ना, जैसे PHP, जावा या फिर .NET या फिर किसी और उसमें आप काम कर रहे हैं। पाइथन आ गई है आजकल, लोग उसमें भी बहुत इंटरेस्टेड है। लेकिन मोस्टली आपको क्या करना होगा, मींस अगर आपको बहुत सिंपल एक वेबसाइट चाहिए, लाइक डिजाइन ऑफ द वेबसाइट और लिटिल बिट ऑफ वर्किंग कंडीशन ऑफ द वेबसाइट, लाइक अगर कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म से आपको कॉन्टेक्ट करना चाहे, अपनी क्वायरी देना चाहे, तो आपके पास पहुंच जाए, राइट? तो वेबसाइट्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज के हिसाब से आप वो करते हैं। लाइक बेसिक वेबसाइट है कि आपको अपना प्रोडक्ट शो कराना, अपनी सर्विसेज शो करानी है। आप में से कोई मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है, किसी को सर्विसेज देने का काम कर रहे हैं, कुछ किसी तरह की सर्विसेज, है ना? तो वो अगर आप करना चाहते हैं, तो जैसे किसी की लॉ फर्म है या फिर कोई एजेंसी है किसी भी तरह की, तो अपनी सर्विसेज शो कराना चाहते हैं, देन दैट इज अ प्रमोशनल वेबसाइट। इफ यू वांट टू सेल सम प्रोडक्ट और आपको वो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करने हैं, तो फिर आप और अपने वेबसाइट से ही सेल करना चाहते हैं, है ना? लाइक Amazon है, फ्लिपकार्ट है, इन अदर प्लेटफॉर्म्स को पैसा देने की बजाय आप सोचते हैं कि मैं अपने ही वेबसाइट पे इन्वेस्ट करूं और उसको थोड़ा सा अच्छा बनाऊं, देन यू कैन चूज ई-कॉमर्स वेबसाइट, है ना? ये सारी वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट रहती है, पर वो थोड़ी पेचीदा हो जाती है। You cannot, of course, you cannot build that kind of website in a single day, right? It takes a lot of time. Yes, कोई I guess कुछ पूछना चाह रहा है क्या? Rohit, you raised your hand. आपका question है कोई? Yeah, it is just a yes. Okay, just go on.
So I think वो yes sir बोलना चाह रहा होगा. All right. If you have a question, you can please either you can say it, unmute yourself, or you can write in the chat box. Okay, that's fine. Let's continue with the session. तो मैं जैसे बता रहा था, वेबसाइट बड़ी बेसिक से लेकर के बहुत फुल फ्लेज डायनेमिक वेबसाइट बनाई जा सकती है, बट आज हम बेसिक वेबसाइट की बात कर रहे हैं, सो दैट आप स्टेप बाय स्टेप चलें. एकदम से आप लॉन्चिंग पैड की तरह आप 6th गियर में नहीं आ सकते. यू नीड टू बी इन फर्स्ट इन न्यूट्रल एंड देन यू स्टार्ट with the first gear. So summary of content जो आज रहेगा वो pick a name of your website, then हम hosting और domain के बारे में थोड़ा सा जानेंगे क्या होते हैं. Of course आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, but जिनको नहीं पता मैं उनको मान करके चल रहा हूँ. वैसे ही हम इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएंगे. Choose a technology, जो अभी मैं बात कर रहा था कि बेसिक वेबसाइट से लेकर के डायनेमिक वेबसाइट और बहुत हैवी वेबसाइट्स तक आप टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से चूज कीजिए. और फिर मैं आज जो टेक्नोलॉजी यूज करने जा रहा हूँ वो है वर्डप्रेस. इट्स अ CMS, इसको बोलते हैं CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये थोड़ा आसान होता है और आपको एक बेसिक वेबसाइट लॉन्च करके दे देता है वेरी विद जस्ट वन क्लिक, I must say. तो इंस्टॉल अ थीम, देन अब वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है फिर हम ये आगे जानेंगे. उसके बाद हम वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं इस पे आएंगे. तो आपको अपना वेबसाइट का नेम पिक करना है और मोस्टली क्या करते हैं लोग, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कितने से सारे लोग, सिर्फ आप में से भी काफी एंटरप्रेन्योर ऐसे रहे होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग में अपने ब्रांड का नाम सोचने में बहुत समय लगाया होगा, है ना. आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे. तो मैं भी इस पे थोड़ा सा वो रखता हूँ, बट जितना जल्दी आप अपना ब्रांड ले लें, अपना नाम सोच ले वेबसाइट का, उतना अच्छा. जैसे आजकल हिंदी नेम्स भी बहुत चले हुए हैं, है ना. policybazaar.com, है ना, पैसाबाजार.com, है ना. वहां पर ये तो नहीं लिखा मनी से रिलेटेड कुछ है, इंग्लिश टर्म ही ढूंढ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है. कॉलेज देखो, कॉलेज दुनिया, है ना. ये सारे के सारे आपको अगर जीवनसाथी.com ऑब्वियसली, है ना. तो अभी देखिए कि सारे हिंदी में नाम क्यों है, मतलब रखते हैं लोग. तो ऐसा है कि कोई एक स्ट्राइकिंग आपका जो वो होना चाहिए डोमेन नेम, और बहुत ज्यादा लंबा ना हो, है ना. जैसे कि कुछ भी बहुत लंबा, है ना. हाँ ठीक है, MBA चाय वाला, लेकिन वो भी चलो छोटा ही है. मतलब आप ऐसा नहीं होगा कि एक वाक्य पूरा लिखते हैं, यानी कि जैसे पूरा सेंटेंस आप एक लाइन में पूरा लिख दे और फिर वो .com हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. छोटे नाम होने चाहिए. शॉर्टर नेम्स आर इजियर टू रिमेंबर एंड टू टाइप, which means users are more likely to find you, also easier to stand out when there are less to read. तो it's a good thing कि आप 2-3 वर्ड्स से ज्यादा यूज ना करें, फिर वो एक सेंटेंस बन जाता है और फिर वो अपना प्रभाव खो देता है, इफेक्टिवनेस वो नहीं रहती फिर, है ना. तो इसी तरह से आपको नाम जो है वो चूज करना, और ज्यादा टाइम ना लगाएं. ज्यादा टाइम लगाना है तो उस बात पे लगाएंगे कि आप वेबसाइट पे अब कैसे काम करना है आपको. नाम चूज करने में कई लोग महीना लगाते हैं, 10 15 दिन. उसके बाद वो आइडिया जो होता है वो बोरियत आने वाला हो जाता है कि नहीं चूज कर पा रहे, छोड़ दो, रहने दो, ये सारी चीजें होने लगती हैं. तो उससे पहले वो पोजीशन आए, उससे पहले कोई एक बढ़िया से नेम पे आप चाहे तो अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली के अंदर सजेशन ले सकते हैं, देन सेटल ऑन वन. ठीक है. तो गेट होस्टिंग एंड डोमेन, फाइंड योर डोमेन एंड वेब होस्टिंग. वेबसाइट्स आर स्टोर्ड और होस्टेड ऑन अ पब्लिकली एक्सेसिबल कंप्यूटर. अब देखिए, एक सर्वर के बारे में ज्यादातर लोग जानते होंगे, हम बहुत स्टार्टिंग से ही सर्वर के बारे में जानते हैं. अब वो होता क्या है एक्चुअली, अगर मान लीजिए आप में से किसी ने अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है. अब वेबसाइट कोई एक फिजिकल चीज तो नहीं है, लेकिन इसको स्टिल कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ता है ना, जो कि वर्ल्ड से कनेक्टेड रहे. www, है ना, www वर्ल्ड वाइड वेब, है ना. तो वेब से कनेक्टेड रहे. कनेक्टिविटी कैसे रहेगी, कहीं किसी जगह तो होगी उसको जहां से हम फैच कर सकें और रिट्रीव कर सके डेटा वहां से, है ना, रिक्वेस्ट भेज सके वहां तक.
तो उसको बोलते हैं सर्वर। बेसिकली क्या है कि हमने एक शॉप ओपन कर दी है कहीं पे और वहां से हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, दैट इज द ओनली थिंग। ये समझ लो डोमेन क्या होता है। डोमेन जो होता है वो आपकी वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है। जैसे www.vikassharma.com, www.yatharthsharma.com या फिर कोई और www.paisabazar.com, दिस इज डोमेन नेम। ये जो डोमेन नेम है ये आपको परचेज करना पड़ता है और ये आपको डोमेन और होस्टिंग कंपनी से परचेज करना पड़ता है। आई होप ये सारी चीजें तो आपको पता ही होंगी, लेकिन अगर नहीं पता तो भी एक वेब एड्रेस जो होता है वो आपका डोमेन नेम रहता है। जैसे अगर मैं कहूंगा कि भाई www.yatharthsharma.in के ऊपर आप जाएं और विजिट करें, तो इसका मतलब मैं अपनी शॉप का नाम दे रहा हूं उसको, है ना। मैं अपना बिजनेस का नाम दे रहा हूं उसको, इसको बोलते हैं डोमेन। तो वेबसाइट का नाम क्या होता है? डोमेन होता है। उसके बाद आप सर्वर के ऊपर, डोमेन तो हमने ले लिया, वो सालाना कुछ पैसे चार्ज होते हैं, जैसे कुछ डोमेन 700-800 रुपए के पड़ते हैं, कुछ 1000 के पड़ते हैं। अगर कोई ऐसा डोमेन जैसे मैंने परचेज किया हुआ है, मान लीजिए www.lg.com, तो LG कंपनी अगर मेरे पास आती है कि ये भाई हमारा ब्रांड है, प्लीज ये छोड़ दो, तो मैं उनसे अपने मुंह मांगी कीमत ले सकता हूँ। समटाइम्स पीपल वो दे परचेज दोस डोमेन्स, है ना, तो उसी हिसाब से फिर वो चार्ज करते हैं। खैर, but the storage space and the features that come with it make your hosting plan। अब आप जाएंगे इन वेबसाइट पे, एक बार आपने नाम अपना जान लिया, उसके बाद आप वेबसाइट कंपनी के पास जाएंगे, उसको कहेंगे कि भाई हमारे को ये नाम चाहिए और होस्टिंग कंपनी के पास, और मेरे को स्पेस चाहिए जहां पर मैं अपनी फाइल्स रख सकूं, वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकूं, या उनकी फाइलें रहे, इमेजेस रहे, वीडियोस रहे, उससे रिलेटेड कंटेंट वहां रहे, ठीक है। तो वो रखने के लिए आपको सर्वर स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो होस्टिंग और डोमेन दोनों एक ही जगह से ले लें तो ज्यादा बेहतर है। आप अलग अलग कंपनी से भी परचेज कर सकते हैं, बट फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। इवन अगर आप एक ही जगह से परचेज करते तो आपको सस्ता भी पड़ता है। चलिए, कुछ लिस्ट ऑफ जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, जैसे इंडिया में जो पॉपुलर है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। एक तो आपने बहुत सारा अभी आजकल जो इंटरनेट पे होस्टिंग की काफी ऐड चल रही, ब्लू होस्ट बहुत अच्छी कंपनी है और इनके थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं डोमेन, जो होस्टिंग जो आपका जो प्राइस रहता है तो वो थोड़ा सा हायर साइड पे रहता है। होस्टगेटर भी एक कंपनी है, वो थोड़ा सा और उसमें है, लेकिन GoDaddy का तो ऐड आपने सबने देखा होगा, है ना, टीवी पे भी आता है। महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, तो आई थिंक आपने ये तो देखा ही होगा टीवी पे ऐड, मैच वैच देखते होगे, आती रहती है GoDaddy की ऐड, है ना। Yes, sir. ऑलराइट, देन आगे चलते हैं। चूज टेक्नोलॉजी। अब देखिए, जितना हमने वहां से परचेज कर लिया, सर्वर स्पेस 4000 के आसपास का पड़ जाता है, मेरे को पता है, ठीक है, साल का, और उसमें होस्टिंग भी आ जाती है, उसमें आपका डोमेन भी आ जाता है 1 साल के लिए। अब आपने डोमेन खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिंदगी के लिए वो आपका हो गया। आपको वन टाइम एक बार पे करना पड़ता है उसके लिए। 3 साल 4 साल के लिए भी बुक कर सकते हैं आप, इकट्ठा प्राइस देना चाहें तो। अब यहाँ पर चूजर टेक्नोलॉजी, इसमें आ गया वर्डप्रेस, विक्स एंड देन बूटस्ट्रैप या HTML। अब ये बेसिक चीजें हैं जिसमें आपको अगर कुछ भी आता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, अगर नहीं भी आता तो आ जाने लगेगा आज के बाद, ठीक है। तो वर्डप्रेस, विक्स और बूटस्ट्रैप, अब तीनों चीजें अलग अलग है। बूटस्ट्रैप जो है वो एक फ्रेमवर्क है जो कि HTML पे चलता है, HTML5, ठीक है, HTML5 CSS3। तो ये जो है ये नॉर्मल HTML, अगर कोई कंप्यूटर से है आप साइड से बच्चे, वो जानते होंगे HTML5 और CSS3 को, उसका फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप जो यूज होता है। इसमें आप क्या करते हैं, PHP के कुछ चीजों के साथ में इसको यूज करते हैं और अपनी वेबसाइट को हल्का फुल्का डायनेमिक कर देते हैं, ज्यादा कर लेते हैं। PHP is a very powerful language as well। तो Wix में जो है वो आप
ये एक तरह का CMS ही है। अब इसके अंदर क्या है, वेबसाइट पे आप वो बनाते हैं अपना, यहीं से डोमेन ले लेते हैं। अब इनको आप मंथली चार्ज देना शुरू करते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट आपके पास बना रहा हूँ। इजी है बहुत बनाना इसमें भी, क्योंकि इंटरफेस बहुत अच्छा है, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस हैं, तो उसमें आप इजीली वेबसाइट बना सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। इनके बने बनाए टेम्पलेट है जो एडिट भी किए जा सकते हैं, बट इसमें आपका मंथली खर्चा है जो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं वर्डप्रेस की, जिसपे आज हम थोड़ा सा काम करेंगे, और इस वर्डप्रेस पे ही हम आज अपना इस वर्डप्रेस से ही आज हम अपना वेबसाइट कैसे बनाते हैं इसको सीखेंगे। देखिए, वैसे तो डोमेन जो है वो खरीदना है, और डोमेन खरीदने तक का मैं आपको वो बता सकता हूँ। तो एक बार प्रोसेस देख लेते हैं कैसे डोमेन को खरीदा जाता है, फिर उसके बाद हम डिजाइन करेंगे वर्डप्रेस से। लेट्स स्टार्ट विद द डोमेन फर्स्ट। अभी तक जो मैंने बताया ये तो समझ आया होगा आपको सबको? ऑलराइट, देन इससे भी आसान आगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से 20 मिनट में हमने इतना कर लिया है, 15 मिनट में, तो अगले 45 मिनट में मैं आपको सिखा भी दूंगा। कोशिश मेरी यही है 45 मिनट्स में हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लॉगिन करना है आपको, और अगर आप इस वेबसाइट पे आपका लॉगिन नहीं है, मैं होस्टिंगर को लेकर के चल रहा हूँ, आप GoDaddy पे जा सकते हैं। सब कुछ लगभग समान ही है, सिमिलर है, बस थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है, नथिंग एल्स। चीजें वही होती हैं कि डोमेन खरीदना है तो जैसे गो एंड सर्च अ डोमेन ओवर GoDaddy, या फिर जहां पर भी चाहें आप। तो यहाँ पर अगर आप लॉगिन करते हैं और अपना यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं, साइन अप करते हैं, और मेरा ऑलरेडी साइन अप हुआ है। अगर आप करना चाहते हैं तो गूगल से कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं अपना खुद का। नॉट अ मेंबर येट, चूज अ होस्टिंग प्लान एंड गेट स्टार्टेड नाउ, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लॉग इन कर सकते हो, और फिर यहाँ से आप जाएंगे, ईमेल पासवर्ड डालेंगे, लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आप फिर सीधा आते हैं यहाँ पर, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप अपने अकाउंट में चेक कर सकते हैं कि क्या है। अभी आप नए हैं तो आप यहाँ पर सीधे आप होम पे जाएं और यहाँ चेक करें। यहाँ पे कुछ मेरे को दिख रहा है कि है ना चीजें हैं, और आप चाहें तो यहाँ से होस्टिंग और डोमेन्स आप सर्च कर सकते हैं। कोई नया डोमेन है, गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से अपना डोमेन सर्च करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डोमेन सर्च करना है आपको। मान लीजिए आप में से किसी का कोई बिजनेस है, आप उसको चूज करना चाहते हैं। मैं अगर यहाँ जाऊं और चेक करना चाहूं अपने नाम का डोमेन, ठीक है, तो सी यहाँ पर ये बता देगा कि vikashsharma.io जो है वो इतने का पड़ेगा मुझे पर ईयर। महंगा है ना। .com इज ऑलरेडी टेकन। क्रिएटिव विकास अगर मुझे लेना है तो 700 रुपए में मैं ले सकता हूँ। हम किसी एक डोमेन पे राजी कर लेते हैं खुद को, और यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए कितने सारे ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है, विकास है ना, और देखिए, और इससे रिलेटेड इसने सजेशन दे दिए। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर .net ये देखना चाहूँ, .net में ले सकता हूँ। तो मैं क्लिक करें तो यहाँ पर सर्च करते हैं, नहीं है, ऑलरेडी टेकन है, ठीक है ना। ऑनलाइन ले सकते हैं तो ये 75 पर ईयर, साथ में आप ऐड कर सकते हो वेबसाइट, ये वो बहुत सारे आ रहे हैं आजकल, तो कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सिंपली आप .org ना लें, क्योंकि org फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, ये ज्यादातर इन सब चीजों के लिए रहता है, जैसे कि कोई क्या बोलते हैं इसे हम, ऑर्गेनाइजेशन है कोई, है ना, NGOs है ज्यादातर, वो यूज करती हैं इसको, राइट। तो हम यहाँ से डोमेन बाय करते हैं तो फिर डोमेन हम यहाँ से खरीद सकते हैं। जैसे भाई अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से एक डोमेन पे वो रख लेता हूँ, जैसे कोई भी डोमेन खरीद लेते हैं, मतलब ER लिख देते हैं। आगे आप देखते हैं
इससे रिलेटेड .com बाय नाउ। अब जैसे आप यहाँ पर बाय नाउ करते हैं ना, तो आपको कुछ प्लान्स दिखाई देंगे यहाँ पे। 3 साल के लिए 499 रुपए फर्स्ट ईयर लगेंगे, बाकी 999 पर ईयर लगेगा। तो फिर ये आप ये ले सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर वाले ये हैं कुछ, आप 499 में फर्स्ट ईयर लेंगे, सेकंड ईयर का फॉलोइंग प्राइस रहेगा 1000 रुपीज के लगभग, है ना। तो यहाँ पर आप फिर टैक्स है आपको देना पड़ेगा, और आप यहाँ से परचेज करेंगे। यहाँ पर कंप्लीट पेमेंट करने के बाद आपको ये डोमेन यहाँ मिल जाएगा। आप जब डोमेन्स पे क्लिक करेंगे अपनी वेबसाइट के, तो आपको यहाँ पर ये डोमेन शो करा देगा कि आपके पास ये डोमेन है, राइट। तो डोमेन के साथ साथ आप होस्टिंग भी खरीद सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है। अगर आप होस्टिंग प्लान लेते हैं तो यहाँ पर होस्टिंग प्लान भी गेट Vikas ji, your voice is not clear. Sir, you're not audible. आप म्यूट पे हैं सर। अच्छा, हाँ जी। हेलो हेलो, नाउ इट्स ऑडिबल सर। हाँ जी। तो कितने देर से ये एक्चुअली तो बस 1 minute बस। हाँ जी। That's a 30 second. Okay, that's fine. क्योंकि I don't know ये अभी कैसे हो रखा है। So चलिए फिर करते हैं इसको कंटिन्यू। तो जैसे मैं बता रहा था कि होस्टिंग जो है खरीदना बहुत आसान है। आप चाहें तो यहाँ GoDaddy से खरीद सकते हैं। ये GoDaddy का होस्टिंग प्लान है। आपको बहुत सारे होस्टिंग प्लान। सॉरी सर, डोमेन से स्टार्ट करो। डोमेन पे थे हम। डोमेन से स्टार्ट करें। हाँ जी Okay. सर, डोमेन परचेज कर लिया। देखिए, हाँ, ये डोमेन जो है आप गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करते हैं और डोमेन आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप जाएंगे और आप जस्ट नीचे सर्च करेंगे जो भी डोमेन आपको चाहिए, और जैसे मैं यहाँ पर ये सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये बाय नाउ करके ये डोमेन मेरे पास आ जाता है। तो मैं यहाँ से बाय नाउ करूंगा और 2 या 3 जो हैं, मैं 3 साल का 2 साल का जो भी मैं लेना चाहूँ होस्टिंग या डोमेन यहाँ से खरीद सकता हूँ। ठीक है, साथ साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि होस्टिंग पे और पेमेंट करनी है आपको। पेमेंट वहां से आपको पता ही है कैसे पेमेंट करना होता है। आपने ऑनलाइन परचेज किया होगा सब कुछ, तो आपको ये पता ही होगा कैसे करना है। गेट अ न्यू डोमेन होस्टिंग प्लान, यहाँ पर क्लिक करेंगे। होस्टिंग अगर आपने लेनी है तो होस्टिंग की टैब पर जाएं और होस्टिंग यहाँ से खरीद सकते हैं। सेम सब कुछ चीजें यहाँ पर भी मिलती हैं आपको। होस्टिंग और डोमेन्स आप जहां पर भी क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर वेब होस्टिंग, होस्टिंग प्लस, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं इधर। ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग पे आपको जाने की जरूरत नहीं, यू कैन इंस्टॉल इट लेटर ऑन एज वेल। तो यहाँ से आप वेब होस्टिंग के यहाँ पर देख सकते हैं प्लान। स्टार्टर प्लान ये है, तो आप यहाँ पर एक वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मैंने जो होस्टिंग प्लान लिया हुआ है उसमें मैं 100 वेबसाइट तक होस्ट कर सकता हूँ, राइट। तो और वो 4 साल के लिए ले लिया था स्टार्टिंग में, और अभी तक पैसा चल रहा है। तो ये देखिए 3 इयर्स के लिए ये प्लान है आपका 4284, यानी 4000 के लगभग ये पड़ता है। इसके अंदर फिर आप अगर चाहें तो कोई डोमेन इसमें साथ में आप परचेज कीजिए। सब टोटल पड़ रहा है 5008 इतने का, जिसमें आप वेब सिक्योरिटी इंक्लूड कर रहे हैं। सॉरी, इसमें 3 साल का ले रहे हैं, तो यहाँ से आप 2 साल 1 साल चूज कर सकते हैं अपना प्लान। ठीक है, जो आपको ठीक लगे वैसा आप प्लान चूज करें। 3 साल का चूज किया है तो महंगा पड़ रहा है, 1 साल के लिए चूज करेंगे तो सस्ता पड़ेगा आपको वो प्लान, राइट। तो होस्टिंग स्टार्टर सर्वर, इसको आप फिर जाके यहाँ पर परचेज कर देते हैं। प्रोमो कोड आप लगा सकते हैं। 2 आइटम ऐड किए, एक को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो सिंगल का यहाँ पर आपको वो प्राइस मिल जाता है इधर। ठीक है, कोई प्रोमो है आपके पास तो आप डाल सकते हो, नेट पे गूगल करेंगे तो मिल जाते हैं प्रोमो कोड आपको। ठीक है,
तो आप वहां से GoDaddy का वो कूपन कोड डाल सकते हैं, तो ये हो सकता है और थोड़ा सस्ता हो जाए। तो इसी तरह से हम जैसे यहाँ पर बना रहे हैं, उसी तरह से आप देख सकते हो इधर मैं एक वेबसाइट 2 सब डोमेन और इतने जीबी का मैं स्टोरेज ले सकता हूँ, यानी 50 जीबी तक का डेटा मैं आपके सर्वर पे आप पे होस्ट कर सकता हूँ। तो उसके बाद आपका एक फ्री ईमेल जो है अकाउंट मिलता है आपको, एक फ्री FTP अकाउंट मिलता है। FTP अलग चीज होती है कि फाइल को ट्रांसफर करना है आपको किसी थ्रू, तो वो है। तो वेबसाइट बिल्डर आपको देंगे, तो ये मेरे ख्याल से वेबसाइट बिल्डर आपको अपना पर्सनल बिल्डर देते हैं, ठीक है। आप वर्डप्रेस मैनेज कर सकते हो, वो भी वर्डप्रेस भी एक बिल्डर ही है, वेबसाइट बिल्डर एक तरह से, तो आप वो भी मैनेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अब चलते हैं, सब खरीदने के बाद आपको स्क्रीन कैसे दिखाई देती है उस पे ले चलता हूँ। यहाँ पर आपको डोमेन्स दिखाई देंगे अपने अकाउंट में, ये मेरा अकाउंट है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ आई हैव अ फ्यू डोमेन्स हियर। ये सारे के सारे ये मेरे बेटे की वेबसाइट है, मैं आज इसी पे थोड़ा सा काम खराब करने वाला हूँ ठीक है। तो यहाँ से मैं इस पे मैनेज करूंगा, तो यहाँ पर मुझे ढेर सारी चीजें दिखाई देंगी। ये एक्चुअली मैंने यस सर एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज वेब होस्टिंग? जी, वेब होस्टिंग मैम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको कुछ फाइल्स, अब देखिए कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वो फाइल्स होती हैं, है ना। अब फाइल्स जो होती हैं वो कहीं पे रखनी पड़ती हैं आपको, वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट करने के लिए। इंटरनेट से आपका डेटा उठ करके आएगा किसी की डिवाइस पे, तो वो आपके सिस्टम से उठ के नहीं जा सकता ना, वो आपका सिस्टम कहीं पे कनेक्टेड नहीं है, तो इसके लिए आपको सर्वर की जरूरत पड़ती है। तो जो डोमेन नेम होता है आपकी कंपनी का, जैसे www.yatharthsharma.in, ये जो डोमेन है ये कहीं पे होस्ट कराना पड़ेगा हमें, है ना। इसकी फाइल्स कहीं पे रखनी पड़ेगी, यानी वो सर्वर जो होता है जहां पर हम वेबसाइट की फाइल्स को रखते हैं और वहां से एक्सेस हो करके आपके कंप्यूटर के ब्राउजर पे जब डिस्प्ले होती है ना, तो वो होस्टिंग होती है, उसको हम होस्टिंग बोलते हैं। तो होस्टिंग की कीमत होती है कि भाई मैंने, मान लीजिए इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक मॉल है बहुत बड़ा, शॉपिंग मॉल है ना। आपने देखे वो बड़े मॉल्स हैं आपके, तो आप गुड़गांव की तरफ, फरीदाबाद वहां जाए तो बड़े शहरों में काफी बड़े बड़े, अब तो छोटे शहरों में भी मॉल्स काफी खुल गए हैं बड़े बड़े। तो उन मॉल्स में छोटी छोटी शॉप्स रहती है सबकी, एक इसकी है वो कोई और शॉप है, कोई नाइकी का शोरूम, कहीं पे रीबॉक का है, कहीं पे आपका कॉस्मेटिक्स का है, कहीं पे कोई बच्चों का अम्यूजमेंट का शॉप है ना, कोई गेमिंग का है। तो ये अलग अलग जो ओपन हुए होते हैं ना, ये समझ लो कि वेबसाइट्स हैं। और जो आपका जो पूरा शॉपिंग मॉल है वो एक सर्वर है, वो होस्ट कंपनी है, ठीक है, जिसमें छोटी छोटी उन्होंने वेबसाइट्स रखी हुई हैं। तो बनता जाता है उस पे और वहां से परचेज करके ले आता है, जिसको जिस वेबसाइट की जरूरत है उसको फैच करता है, बस। आई होप इट क्लियर्स ऑल, है ना सर। ये हाँ जी, एक और क्वेश्चन आया है, व्हिच मेजर पॉइंट वी शुड प्रेफर बिफोर परचेजिंग वेब होस्टिंग? देखिए पहले 2 चीजें इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं सारा कुछ कवर कर सकता था पर थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंस फिर भी बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप होस्टिंग परचेज करते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि होस्ट जो है वो रिलायबल हो और अच्छा हो, जिसका नाम अच्छा हो, जिसकी रेटिंग अच्छी हो। जैसे GoDaddy है, आप सब लोग जानते हैं, इसका ऐड चलता है, इस पे आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसा कुछ वायरस अटैक नहीं आएगा, या फिर थोड़ा सेफर रहेगा, थोड़ा सा इसको इस पे वेबसाइट थोड़ा जल्दी आपकी डाउनलोड हो जाएगी, है ना। वेबसाइट डाउनलोडिंग मतलब कि आपकी स्पीड अच्छी रहेगी वहां पे सर्वर पे। तो ये सारी चीजें देख करके ही आप होस्टिंग चूज करते हो। तो मैं बताऊंगा आपको कि होस्टिंगर इज अ गुड होस्टिंग कंपनी।
और ऐसे ही GoDaddy भी एक अच्छी है कंपनी। ब्लूहोस्ट और भी अच्छी कंपनी मानी जाती है एक तरह से। ब्लूहोस्ट जो है सर्वर बहुत तेज चलता है, उसका भी, उस पे भी वेबसाइट्स बहुत ज्यादा होस्ट की जाती है। तो ये 3 कंपनी के बीच में आप थोड़ा सा चूज कर सकते हैं, कोई एक कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा HostGator है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, वो बहुत सस्ता भी दे देती हैं होस्टिंग आपको। जैसे कि अगर इस GoDaddy पे 4,000 रुपए लगते हैं, तो किसी हो सकता है कोई और 2,500 रुपए में दे रहा हो वही चीज आपको, 3,000 में दे रहा हो, 1,000 रुपए बच रहे हो आपको साल के। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप अगर होस्टिंग लेना ही चाह रहे हो तो ऐसी जगह से लो जहां पर आपको सर्विस भी मिले, आपको कस्टमर केयर भी अच्छा मिले, आपको आपकी वेबसाइट, आपका सर्वर डाउन ना हो ज्यादातर टाइम, तो आपको बेटर होस्टिंग उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। Shall we continue with Yes. the website? All right. So actually, हाँ तो जी। और भी questions आ रहे हैं. If you would like, एक शुभम is asking, will you suggest Google Cloud? Yes, you can actually. Google का भी अच्छा वो है। और अगर आप शेयर होस्टिंग की बात करते हैं तो मतलब इनमें से कोई भी चूज करें, you can use क्लाउड जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन सबसे होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से। उस पे आप अपना, उस पे आपका मेरे ख्याल से मंथली चार्ज रहता है, राइट। तो उस पे प्लान्स कुछ अलग रहते हैं, बट वो सेफ है ऐसी बात नहीं है, वो सेफ नहीं है। और ऐसा शेयर्ड होस्टिंग नहीं है, एक तरह से आपको अपना स्पेस मिल जाता है और आपको एक उसमें आप अपना वेबसाइट को अच्छे से रख सकते हैं। बस ये फर्क कुछ खास नहीं है, इतना कुछ खास फर्क नहीं है। बस बात यह है कि मैं अगर आपकी वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ तो आपकी वेबसाइट कहीं अटकनी नहीं चाहिए, लैग ना करे, या ऐसा ना हो कि घूमती रहे और चले ही ना, है ना, तो वैसा भी ना हो, राइट। तो अब देखिए, वेबसाइट जब हम डोमेन और वेब होस्टिंग जब दोनों ले लेते हैं तो होस्टिंग आपको पता ही है कि फाइल्स कहीं पे रखी जाती हैं, है ना। तो वो फाइल्स जहां रखी जाती है ना, तो वो होती है होस्टिंग। डोमेन इज द नेम, लेकिन हमें इस डोमेन पे देखना होगा कि मेरे पास एक कौन सा डोमेन है। देखिए ये है मेरा डोमेन, ठीक है। इस पे मैं ऑलरेडी वेबसाइट रन कर रहा हूँ, ये देखिए। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी जो है वेबसाइट रन कर रहा हूँ और ये कुछ ऐसे ओपन होता है, ठीक है। मेरे बेटे के लिए मैंने बनाई थी, तो फिर मैंने वो एक्चुअली उसको गिफ्ट किया था ये वेबसाइट। तो अभी इस पे काम करना है और मैं धीरे धीरे उसको सिखा रहा हूँ। इट्स जस्ट 11 राइट नाउ, लेकिन फिर भी मतलब कुछ कुछ चीजें हमने ऐड की लाइक दिस, राइट। तो गैलरीज और ये फोटोज ऐड करना, ये सब आप कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ द सेशन। मतलब आप थोड़ा सा सीखते चले जाएं इसके अंदर, है ना। तो ये एक वेबसाइट है जो ऑलरेडी चल रही है डोमेन, ठीक है। आपने देख लिया, ज्यादा रुकी नहीं, बहुत ज्यादा हैवी वेबसाइट नहीं है ना। तो ये भी एक स्पीड जो है मैटर करता है। तो अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं ये जैसे डोमेन है, इसके बाद हम चलते हैं होस्टिंग में। होस्टिंग पे जब जाते हैं वेबसाइट्स पे जब जाएंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं ढेर सारी वेबसाइट है जो इस पर्टिकुलर होस्टिंग जो मैंने ली हुई है उसमें ये इतने सारी वेबसाइट जो है वो होस्ट कर रखी है मैंने। मतलब यहाँ पर इतनी सारी वेबसाइट जो है वो चल रही हैं। तो अब जैसे ये वेबसाइट, पर्टिकुलर वेबसाइट है जो हमारी चल रही है, इसके ऊपर हमें काम करना है, तो मैं यहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ। सीधा हम गए मैनेज पे, ठीक है। ये एक बार आपको इसके अंदर मैनेज करना है, यहाँ पर फिर जाएंगे आप यहाँ पर फाइल मैनेजर में। ये फाइल मैनेजर एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर आपकी सारी फाइल्स रहती हैं जो आप बनाते हो, तो वो फाइल्स यहाँ रहती हैं एक्चुअली, ठीक है। जैसे अगर कोई नॉर्मल HTML का पेज भी डालना है तो भी वो पब्लिक HTML में ही रहेगा, यहाँ पर इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो ये सारी वो फाइल्स हैं जो हमारी
वेबसाइट शो होने में यही उसके पीछे है उसके, मतलब ये कोड है जो रन होता है और ब्राउजर पे दिखता है। इट्स वेरी सिंपल। तो पब्लिक HTML जो फोल्डर है उसके अंदर हमारा ये फाइल्स का सेक्शन रहता है। जो चीज पब्लिक HTML में है वो वहां शो होगी फिर ब्राउजर पे, अगर वो ठीक से कोडेड है तो। इवन मैं यहाँ पे अगर कोई HTML का पेज डाल दूं छोटा सा तो ब्राउजर पे वही रन होगा। तो ये तो हो गया छोटा सा हमारा पब्लिक HTML का सिस्टम। इसको छोड़ देते हैं एक बार के लिए और चलते हैं आगे। अब देखिए ये तो ऑलरेडी बनी हुई वेबसाइट है। आप कहोगे सर ये तो बनी हुई वेबसाइट है, इसके ऊपर आप क्या बनाना बता रहे हो? आप हमारे को स्टार्टिंग से बताओ कि वर्डप्रेस क्या है और कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये हमने कर लिया पिछला सेक्शन, हमने चूज किया था वर्डप्रेस और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और डिजाइन प्रोसेस, यहाँ से आपका वेबसाइट का डेवलपमेंट प्रोसेस या डिजाइन प्रोसेस कुछ भी कहें वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को। तो अब देखिए ये ठीक है, डोमेन बना हुआ है मेरे पास ऑलरेडी, इसमें इंस्टॉल्ड भी है वर्डप्रेस। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर एक सब डोमेन बना देता हूँ जो कि डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जैसा ही होगा। ठीक है, तो मैं एक बार डोमेन्स में जाता हूँ। ये आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली यहाँ वर्डप्रेस पे क्लिक करना है एंड देन यू विल बी एबल टू इंस्टॉल इट। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं, सब डोमेन मैं ही बना रहा हूँ सिर्फ एक बार के लिए। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ कनेक्ट, मैं यहाँ पर सोशल कर देता हूँ। ठीक है, या बिजनेस ज्यादा सुटेबल है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, तो सोशल वो डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम business.yatharthsharma.in मैं एक सब डोमेन बना रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि हम yatharthsharma.in पे ही काम कर रहे हैं। आप जब अपनी वेबसाइट का डोमेन लेंगे तो मैंने बताया आप यहाँ वर्डप्रेस पे जाएंगे और इंस्टॉल करेंगे उसको। ऑटो इंस्टॉलर से इंस्टॉल हो जाता है, बहुत इजी स्टेप है, बहुत इजी काम है। अब आगे अब देखिए जरा, यहाँ पर हमने किया कस्टम फोल्डर फॉर सब डोमेन। अगर आप ये करते हैं तो यहाँ पर पब्लिक HTML में एक कस्टम फोल्डर आ जाएगा। पब्लिक HTML मैंने आपको दिखाया था, ये है ना, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, अगर आप जैसे यस करके दिखाओ सर। हाँ, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। ये आपको प्रैक्टिकल नहीं है क्या दिख रहा? ये एक्चुअली होस्टिंग चल रही है, मैं यहाँ पे लाइव वेबसाइट पे काम करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने business.yatharthsharma.in पे गए, कस्टम फोल्डर बनाना है, यहाँ से मैं बना रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, क्योंकि आप सीधे वर्डप्रेस में जाएंगे और इंस्टॉल करेंगे। मैं ऑलरेडी वो वेबसाइट बना चुका हूँ, मैं उसको चेंज नहीं करना चाह रहा, वरना मुझे सारा काम फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सेम चीज आपको बना करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बिजनेस डोमेन। मैं कितने भी बना सकता हूँ, यहाँ पे 3 या 4 मेरे ख्याल से, नहीं होगा तो हम कनेक्ट वाला डिलीट कर देंगे। तो बिजनेस और उसके बाद क्रिएट, मेरा सब डोमेन क्रिएट हो जाता है और ये आ जाएगा। जैसे ये है वैसे ये आ गया। ठीक है, अब मुझे सीधे जाना है इंस्टॉलिंग पे, ऑटो इंस्टॉलर वेबसाइट पे, ऐसा ही आपका वर्डप्रेस पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से आप जाएं तो वर्डप्रेस यहाँ वेबसाइट पे आ सकते हैं, वेबसाइट पे आए और सीधा ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक कर दें। आपको अगर वो उसमें दिक्कत है कि वो फोल्डर अलग बताया मैंने, तो यहाँ पर आएंगे, सीधा आप यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल इंस्टॉल दिस। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पर और भी CMS है, वर्डप्रेस है, वूकॉमर्स है। वूकॉमर्स किस लिए होता है, कोई जानता है वूकॉमर्स के बारे में आप में से? Anybody else? Vikas sir says selling product. Shubham Kumar says e-commerce website. E-commerce Yes, very good.
शुभम सही कह रहा है, कन्वर है ना। तो ये बिल्कुल ठीक कहा। मंजीत आप भी कुछ बोलना चाहते हो तो अनम्यूट करके अपने आप को बोल सकते हो। अनुराग ने भी सही कहा कि अनुराग ने, कैन यू आल्सो शो थ्रू वर्डप्रेस में मींस, हाँ वर्डप्रेस के थ्रू अगर मैं करता हूँ वहाँ पे इंस्टॉल, तो मेरी जो नई जो ओल्ड वेबसाइट है वो वॉश हो जाएगा फिर। तो मैं, बात वही है, आप यहाँ से कर लें, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं वर्डप्रेस के थ्रू ही कर रहा हूँ। ठीक है। ई कॉमर्स, यस बिल्कुल, ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होती है? आप शायद, मेरे ख्याल से आप लोगों को ज्यादा ई कॉमर्स की जरूरत पड़ती होगी, है ना। Of course, you people are selling a few products maybe or services. If you are selling your services, then you need not to install WooCommerce. लेकिन अगर आप WooCommerce भी इंस्टॉल करते हो, then only तब भी आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए, I'll show you। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ वर्डप्रेस सर्विसेज, हम करेंगे। उसके बाद आप WooCommerce का प्लगइन डाल सकते हो, ठीक है। इवन अगर आप एक वर्डप्रेस की साइट ऑलरेडी रन कर रहे हो, उसके बाद भी आप WooCommerce उसमें चला सकते हो। I'll show you। लेकिन यहाँ पर हम जाएंगे, देखिए सिलेक्ट करेंगे वर्डप्रेस को। अब मैं चाहूं तो देखिए यहाँ पर एडवांस में जाकर के वेबसाइट का टाइटल दूंगा, क्या नाम से, बिजनेस वेबसाइट यथार्थ शर्मा। ठीक है, बस थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करने के लिए आप टाइटल कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है ना। आप वो टाइटल डालेंगे जैसे कि आपके जो काम से रिलेटेड होगा। जैसे अगर कोई वेबसाइट डिजाइन है, वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी है, या आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, या लॉ फर्म है, तो उससे रिलेटेड आप नेम डाल देंगे, लॉ फर्म या फिर एडवोकेट या फिर जो भी रहता है ना, एडवाइजर, कंसल्टेंट, व्हाटएवर रिलेटेड टू योर बिजनेस। तो यहाँ पर जैसे yatharthsharma.in पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं कह रहा था कि मैं उस तरह से नहीं जाऊंगा, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा। आप यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, business.yatharthsharma.in को सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं कोई सब डायरेक्टरी एंटर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करनी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। कहाँ पे डालेंगे हम इसको? पब्लिक HTML के बिजनेस फोल्डर में इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम करेंगे, देखिए अगर मैं ऑलरेडी देखूं तो डेटाबेस ऑलरेडी 2 बने हुए हैं। एक डेटाबेस बना हुआ है, देखिए पहले डेटाबेस के बारे में समझ लेते हैं। कोई भी जब भी हम कोई भी इंस्टॉल करते हैं ना किसी भी एप्लीकेशन को, तो वो किसी डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। जैसे अब अगर मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो वो जो फाइल्स जो स्टोर होती हैं, उनका कनेक्शन जो है वो डेटाबेस से करना पड़ता है, ताकि डेटाबेस से उठ करके चीजें आए, इमेजेस एंड ऑल दैट, है ना। तो अब मैं डेटाबेस के साथ इसका कनेक्शन बना रहा हूँ। कोई भी जाए, कोई भी चीज यहाँ पर इंस्टॉल होगी तो वो डेटाबेस पे इंस्टॉल होने वाली है। अभी मैं यहाँ पर डेटाबेस, आपका सारे लोग ना भी जाने डेटाबेस के बारे में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स यू पीपल आर नॉट वेब डेवलपर एंड यू नीड नॉट टू नो मच अबाउट दिस, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अदरवाइज फिर आप वो धीरे धीरे हौसला खो देंगे। तो यहाँ पर हम इसको साइड बाय साइड बाद में सीख सकते हैं इफ यू वांट टू लर्न वेब डेवलपमेंट। बट राइट नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ क्रिएट न्यू डेटाबेस करते हैं, और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यही यूज करके रखें। अपने आप डेटाबेस का नाम क्रिएट कर देगा। पासवर्ड आप जरूर डाल दें यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम डालना है यथार्थ, ठीक है, छोटा रख लेते हैं वाई, बाद में दिक्कत नहीं होती यूजर नेम डालने में ना। अगर हम यहाँ पे अभी बड़ा वाई कर दें तो फिर मेरे को वहां पे भी वैसे ही टाइप करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे यथार्थ, ठीक है, ऐसे। नाउ
मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया और फिर मैं इसको सेव करूंगा, ठीक है। और ईमेल भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूं like this. Your password must have at least 8 characters long and contain at least one number, one upper letter and one lowercase letter. Okay. Administrator password का मतलब होता है जब हम वेबसाइट को एडिट करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, सिंपली। तो Sir, Prachi has raised her hand. She has a question. Can I? हाँ जी, हाँ जी, Prachi, आप please अपना question पूछ लो. Okay, ma'am. Sir, I have a question that I made a blog site over WordPress, but didn't purchase any hosting plan. So, what difference would it make? नहीं, आप you just need to purchase a hosting plan. अगर आप वेबसाइट को होस्ट कराना चाहते हैं, need to purchase it. Otherwise there is no other option. अगर आप अपने लोकल सर्वर पे, अपने लोकल होस्ट पे वेबसाइट बनाए बैठे हो और आप सोचते हो कि इसको सभी लोग देख पाएंगे, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। Okay, sir. You need to have a hosting plan. See, बात सीधी सी है, आप कोई अपना बिजनेस चला रहे हैं और आपको अपने वो आइटम्स जो हैं बेचने हैं, तो आपको कहीं तो वो रखने पड़ेंगे ना शो कराने के लिए। इसीलिए आपको किराया देना पड़ेगा इधर किसी शॉप का, या फिर आप उसको अपने घर पे रखें और सेल करें। लेकिन वेबसाइट पे जब हम कोई चीज रखते हैं तो उसके लिए होस्टिंग जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, sir. राइट। तो अगर आप सोचते हैं कि आप साल भर में सिर्फ 3,000 से 4,000 रुपए या 2,000, यहाँ तो हम 2,000 में ही खरीद रहे हैं, अगर 2,000 रुपए में होस्टिंग खरीद लेते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट एंड वी कैन नॉट मेक इट, बिकॉज इफ वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस एटलीस्ट वी नीड टू इन्वेस्ट minimal amount like under 10,000 if you are investing, then that is a decent amount. If you want to earn something, वो कहते हैं ना पैसे को पैसा खींचता है, तो वो वाली स्टोरी है। यहाँ पर थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा फिर पैसा आता है। Of course it's not a share market, but because जितना पैसा डालो हो सकता है चला भी जाए ना भी आए वापस, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि ठीक है थोड़ा पैसा लगाया तो उतना रिटर्न आपका मिलता है। आपको इतना आपको पता है, आपको प्रोडक्ट में अगर आपके दम है तो इट विल यू कैन मेक ह्यूज मनी, राइट। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड सेट कर दिया, डेटाबेस का भी और एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड भी। नेक्स्ट करते हैं, और हमने याद रहे हमने जो चूज किया था वो ऊपर वो ये वाला डोमेन चूज किया है ना। तो नेक्स्ट करते हैं। आप देखिए कहेगा कि सेव कर दो, आप यू नेवर सेव इट, यू नेवर एवर सेव द पासवर्ड्स लाइक दीज, है ना। ये किसी और के पास सिस्टम चला गया तो आपकी वेबसाइट उड़ा सकता है, खराब कर सकता है, डिलीट कर सकता है, चेंजेस कर सकता है ना, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। रेकमेंडेड जो है वो एप्लीकेशन वर्जन इसको हाईएस्ट पे रखा जाता है हमेशा, तो यही रहने दे। इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, PHP वर्जन बहुत करंट वाला है, लेटेस्ट जो है आपका, और डिस्क स्पेस जो है 55 MB ये यूज करने वाला है। ये इंस्टॉलेशन 55 MB ऑफ स्पेस यूज करेगा, और ये आपका जो डिस्क स्पेस है ये वो है जो सर्वर वाला है। इंस्टॉल करते हैं एंड दैट्स इट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड ऑफ द इंटरनेट, एंड बिंगो इट्स डन। ठीक है, अब यहाँ देखिए बिजनेस वेबसाइट यथार्थ शर्मा जो है वो लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इफ यू वांट टू एडिट इट यू कैन एडिट द वेबसाइट फ्रॉम हियर। एक बार लॉन्च करके देख लेते हैं कि क्या बना। फर्स्ट पेज जो है वेलकम पेज आपके सामने आ जाता है। सिंस वर्डप्रेस इज अ ब्लॉगिंग वेबसाइट, आप बहुत सारे ब्लॉग लिख सकते हैं और ब्लॉगिंग बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो ये फर्स्ट पेज जो आपका अपीयर हो रहा है
ये वाला, ये पेज ब्लॉग वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप फर्स्ट पोस्ट देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, तो ये आपका ब्लॉग दिखाई दे रहा है। आप इसको एडिट कर सकते हैं कैसे, अभी मैं बताता हूँ। कोई क्वेश्चन आ रखा है शायद, लेट मी चेक, व्हिच वन विल बी गुड फॉर सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस के लिए आपका ये ठीक है, आई मीन वर्डप्रेस इज अ गुड थिंग। अगर आप नॉर्मल सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, तो फिर उसके अंदर आपके लिए ये बेटर ऑप्शन, राइट, दिस इज मच बेटर ऑप्शन। तो चलिए हम चलते हैं आगे, क्योंकि ये सेशन खींचने वाला है थोड़ा सा अभी, क्योंकि हमने अभी वेबसाइट को लॉन्च किया है, अभी हम उसको एडिट करने वाले हैं। और ये देखिए हम अब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं। ये वाला स्टेप जो है इसका नेक्स्ट स्टेप है, जिसको आप बोलते हैं इंस्टॉल अ थीम। वर्डप्रेस थीम इज अ स्टैक ऑफ इंटरकनेक्टेड फाइल्स, स्टाइल शीट्स, टेम्पलेट्स, इमेजेस एंड कोड that form your site front end visual appearance। अब देखिए ये जो सारा कुछ लिखा हुआ ना, इसका मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जितनी चीज हमने अब वेबसाइट पे दिखानी है वो यहां से दिखाएंगे। ठीक है, सॉरी, इट वाज सम काइंड ऑफ इंटरप्शन। तो बाहर से कुछ शोर आ रहा था, कुछ लोग खड़े हैं जो खिड़की के पास, तो सॉरी। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर हम इंस्टॉल अ थीम। देखिए ये जो थीम हम इंस्टॉल अब हम करेंगे, ये ज्यादातर क्या होगी, ये होगी वो थीम जो दिखाई देगी, वो फ्रंट एंड पे दिखाई देगी। फ्रंट एंड क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिस इज फ्रंट एंड। इसके पीछे क्या काम कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। तो थीम्स एंड प्लगइन्स क्या होते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। हमने देखा कि ये वेबसाइट ऐसे लॉन्च हुई, यहाँ आप देख सकते हो नीचे फुटर आ गया और ये सब, बट ये तो बहुत सिंपल है। इसको ठीक कैसे किया जाए, हर डोमेन नेम के बाद आप स्लैश लगा सकते हैं, WPADMIN लिखेंगे और आप एडिट कर सकते हैं। यू विल बी एबल टू एडिट दिस वेबसाइट। अगर ऐसे नहीं करना चाहते और याद नहीं रहता, तो आप यहाँ से वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप वेबसाइट को एडिट करेंगे तो भी ये आपको, ये ऑलरेडी लॉग इन है, आपको पता ही है, ये ऑलरेडी हमने साइन इन किया हुआ है, तो सीधा ये आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा अगर आप यहाँ से जाएंगे। तो अगर आप एडमिन से जाएंगे, देखिए यहाँ पे भी WP एडमिन है, क्योंकि मैं इन्हीं के सर्वर से जा रहा हूँ एडिट करते हुए, तो जो ऑथेंटिकेशन है मेरी वो सही है, क्योंकि मैं इन्हीं के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो लॉगिन इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ। अगर वैसे नहीं करता हूं तो ऐसे करूंगा, यहां पर मैं डालूंगा, याद है आपको मैंने यूजर नेम रखा था, और उसके बाद मैं यहां पासवर्ड डालूंगा। like this, and then you'll be able to see the same things। ये पैनल होस्टिंग वाला है, ये नॉर्मल है, बस इतनी सी बात। तो मैं नॉर्मल वाला रख लेता हूं, और यहां पर हम देख सकते हैं ये कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब कह रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, और ये आपका वर्जन है वर्डप्रेस का, और यहाँ पर आप अपनी साइट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, अब जो मेन ऑप्शंस है मैं सिर्फ वही बता सकता हूँ। ऑफ कोर्स ये 1 आवर का सेशन था, तो मैं 1.5 आवर के आसपास इसमें मानता हूँ कि लग जाएगा, या फिर 15 या 20 मिनट और। तो 20 मिनट में मैं आपको बहुत सारी चीजें तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीका जरूर बताऊंगा एक बार किसी चीज को लॉन्च करने के लिए। तो ये सामने जो है ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, दिस होल, कौन से वाला, ये
ये सारा का सारा डैशबोर्ड है। लेफ्ट साइड में कुछ पैनल है जिसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, राइट साइड में इन ऑप्शन से रिलेटेड कंटेंट आएगा। ये सारा का सारा आपका कहलाता है डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड वही गाड़ी वाला डैशबोर्ड है कि भी सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, और आप यहाँ से ब्रेक भी लगा सकते हैं, एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, और बाकी सब चीजें गियर वेयर सब कुछ यहाँ पर है। बस आपको गाड़ी यहीं से चलानी है, कहने का मतलब। ये बैकएंड है आपके पास में है, ये किसी और को नहीं देना है आपने। और आप जो भी चीज करेंगे यहाँ पर वो फ्रंट एंड पे शो होगी। कहाँ पर? हमारे डोमेन पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे इधर, दैट्स इट। अब देखिए जैसे मैं चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ भी, तो सबसे पहले मेरे को वो लुक अच्छी नहीं लग रही वेबसाइट की, तो मैं अपीयरेंस में जाऊंगा। आई विल गो टू द थीम्स। अब ये थीम क्या होती है? थीम जैसे वो आपने स्कूल में जब छोटे थे आप लोग, तब आपने देखा होगा ना कि कोई बच्चा टमाटर बन के जा रहा है, कोई कुछ और बन के जा रहा है ना। तो मतलब एक थीम दे देते थे वो कि भाई आज सब्जियां बन के जाएंगे सब, या फ्रूट बन के जाएंगे। तो जो फ्रूट जिसको पसंद है वो बन के फैंसी ड्रेस में वो डल के जाते हैं। तो वो डाल के जब जाते हैं वो बन थोड़ी जाते हैं वो चीज, लेकिन रिजेंबल तो वही करते हैं। तो दिखने में जो भी चीज आएगी वो इस थीम के थ्रू आती है, यानी इसकी लुक एंड फील हम थीम के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो थीम है वर्डप्रेस जो देता है वो है 2023, 2021, 2022, which are the basic themes of WordPress, जो अपने आप देता है। इन तीनों में से कुछ चूज कर लो, नहीं तो आप अपनी पर्सनल थीम बना लें। अगर उतना ज्ञान नहीं है तो किसी की बनाई हुई ले लें। अब कुछ थीम्स आती हैं जो पैसे से खरीद सकते हैं, हर जगह पैसा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्री थीम्स भी सेल करते हैं। तो हम यहां पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू थीम, अब थीम ऐड करने जा रहे हैं, और यहां पर जैसे ही ऐड न्यू किया, या अगर तो आपके सिस्टम पे पड़ी है कोई थीम तो यहां से अपलोड कर सकते हैं, चूज कर फाइल कीजिए और इंस्टॉल कर दें। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहां से सर्च करें। सिंपली आपको सर्च ही करना चाहिए, ASTRA, एक थीम बता रहा हूं वर्डप्रेस की, द मोस्ट फेमस थीम, वन ऑफ द मोस्ट फेमस। एक एस्ट्रा है, एक सिडनी है, एक आपको ऐसी काफी है ना, ओशन WP। अगर आप वर्डप्रेस जानते होंगे ना थोड़ा भी, तो इन सब थीम्स के बारे में सुना होगा आपने। तो ये बहुत अच्छी और फेमस थीम्स है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। दैट्स व्हाई आई एम रेकमेंडिंग दिस थीम टू यू। मैं एस्ट्रा पे क्लिक करता हूं, यहां पर एस्ट्रा, यहां पर इसको सर्च किया तो यहां एस्ट्रा आ गई, और मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल इट विल टेक लेस देन 10 सेकेंड। अब अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा है तो ये 5 सेकंड के अंदर भी कर देता है। एक्टिवेट करना है, इतना आसान है कि सिर्फ एक्टिवेट करना है, एंड आई विल शो यू व्हाट इट विल डू। यहां पर हमने एक्टिवेट कर दी। अब देखिए एक्टिव थीम कौन सी है? एस्ट्रा। पहले कौन सी थी? ये वाली 2023। तो हमने एस्ट्रा थीम को ऑन कर दिया। Sir, we've lost you. Sir? Sir, I think you're on mute. Ma'am, I don't know how it is happening, but okay, that's fine. Yes, because अपने आप ही हो रहा है ये। या हो सकता है आप मैम आपकी तरफ से वो होस्ट हो रहा है ना, तो आपका लिंक है, मे बी दैट्स व्हाई। क्योंकि मैं रेगुलर क्लासेस लेता हूं तो उस समय नहीं होता है ऐसा। चलिए एनीवेज, अगर ज्यादा
हम दूर नहीं गए हैं। तो एक्टिव थीम को एक्टिवेट कर दिया हमने यहाँ से। थीम को एक्टिव करने के बाद आपका रिजल्ट ये आ रहा है। अब हम कुछ और चीजें इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम इसको और इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा थीम है और थीम के अंदर हमारे को कुछ चीजें मिलती हैं जिसको हम कस्टमाइजर में जा करके चेक कर सकते हैं। तो यहां पर कस्टमाइजर कुछ ऐसे ओपन होता है लाइक दिस। अब देखिए ये आपका थीम है, ठीक है, ये वाला, और मैं इसको पब्लिश कर सकता हूं। इसको करेंगे पब्लिश और ये यहां पर पेज लग करके आ जाता है। अब आपकी वेबसाइट तैयार है लगभग। अब मैंने ये जो है ऑलरेडी जो है यहां पर बना दिया, ठीक है। अगर आपका इनसे काम चलता है तो ठीक है, आप यहां पर एडिट कर सकते हैं इस थीम को। यहां से आप एडिट करेंगे और पेजेस का कंटेंट जो है अपने हिसाब से चेंज करते जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये देखिए यहां पर आप चेंज करेंगे योर आइडिया मैटर्स, जो प्लान मैटर्स, जैसे मैंने यहां किया, अपडेट किया और देखिए यहां पर चेंज होता है क्या। दैट्स इट, इतना आसान है। लेकिन मैं इससे और आसान चीजें भी आपको बता सकता हूं। फिलहाल के लिए आपको इमेज चेंज करना है, आप यहां पर जाएंगे, आप इमेज चेंज कर सकते हैं, विड्थ, हाइट, ये सब एडजस्ट कर सकते हैं। और इमेज जो है आप सेटिंग्स में जा करके और यहां से, है ना, ये सारी चीजें चेंज की जा सकती हैं। आप यहाँ पे जाएं, इमेज पे जाएंगे और ठीक है ना, इस इमेज को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, और अपलोड करेंगे और इमेज रिप्लेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। अब मेरे पास कोई इमेज है नहीं एज सच जो मैं रिप्लेस कर दूं। लेट्स सी, आई विल फाइंड समथिंग राइट लाइक दिस, I've changed it, ठीक है। तो एक इमेज ये हो गई। तो इस तरह से आप कंटेंट चेंज करना चाहते हैं, जस्ट गो देयर एंड राइट समथिंग अबाउट दिस, यू कैन चेंज द कंटेंट, राइट। अब बात ये है कि ये सारी चीजें बनाने के बाद भी जब मैं इसको पब्लिश करता हूं तो यहाँ पर ये आइटम्स यहाँ चेंज हो जाएंगे, सर्विसेज यहाँ पर ये चेंज हो गया, है ना, लाइक दिस। तो ये सारे के सारे आप जो ब्लॉक्स हैं इनको यूज कर सकते हैं। बट एक और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये तो थीम का अपना एक पेज है जो हमने लगा दिया, अप्लाई कर दिया। तो हम जाएंगे अब एक और क्रूशियल पार्ट पे जो नेक्स्ट है हमारे इसमें, इंस्टॉल अ थीम रिलेटेड प्लगइन। अब प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। प्लगइन्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे गैलरी है, आपने गैलरी प्लगइन कोई डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया और उसके अंदर इमेजेस डाल दी और आपने शो करा दी, है ना, तो वो प्लगइन हो गया। या फिर प्लगइन हो गया किसी फॉर्म का, कि आपने कोई फॉर्म लगाया और उससे कुछ डेटा आप फैच करवाना चाहते हैं, वो फॉर्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपनी वेबसाइट में कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं आपको प्लगइन बताता हूँ वो प्लगइन कैसे डाउनलोड होते हैं वो देखिए। जैसे हम थीम्स में गए थे इसी तरह से हम प्लगइन्स में जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें कुछ एक प्लगइन्स जो है ऑलरेडी ऑटो इंस्टॉल्ड रहते हैं जो वर्डप्रेस थीम के साथ में आते हैं। ये देखिए होस्टिंगर वालों ने अपना डाला हुआ है, ठीक है। इसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हो होस्टिंगर का अगर करना चाहो तो, लेकिन इसको करना नहीं चाहिए, है ना, वो एडमिन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और यस, आप एक्स्ट्रा थीम को यूज कीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं अभी बताता हूं कि थीम के लिए आप मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes, yes. Yes. All right.
ठीक है, आई टेक योर क्वेश्चंस क्वेरीज, क्योंकि अभी बीच में अगर मैं इंटरप्ट करूंगा आपको फिर समझ नहीं आएगा वो, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ चलता हूँ और फिर मैं आगे चलता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ कि कुछ थीम्स जो कह रहे हैं अपडेट कर दो। अब मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ यहाँ से कुछ प्लगइन्स, लेकिन मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड न्यू पे, जैसे हमने ऐड थीम किया था ऐसे ही ऐड प्लगइन कर देंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ कुछ प्लगइन्स वैसे दिखा रहे हैं, आपको सिर्फ यहाँ से डाउनलोड करना है। एक्स्ट्रा स्टार्टर साइट्स अगर आप चेक करें, एक्स्ट्रा लिखेंगे ना तो आपको ये दिखाई दे जाएगा। अब देखिए कुछ बात तो इसमें होगी, जो 1 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी। मैं इंस्टॉल करता हूं, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर देंगे इसे। तो ये कुछ स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं जो हमारे को मिलते हैं, तो ये एक्टिवेट कर दिया हमने इसको। एक प्लगइन और मैं जरूर एक्टिवेट करना चाहता हूं, वो एक्टिवेट करेंगे हम कुछ ऐसे। अब देखिए ये प्लगइन यहाँ शो हो जाएगा, ये स्टार्टर टेम्पलेट्स जो हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। सी लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी दिखाई देगी और आप वो चूज कर सकते हो। बिल्ड योर वेबसाइट नाउ अगर आप यहाँ पे करते हैं, अब देखिए ठीक है, स्टार्टर के साथ में जो मैं प्लगइन से ऐड करना चाह रहा था प्लगइन, वो यहाँ पे मिलता है, ये एलिमेंटर। ये क्या चीजें होती हैं, ये पेज बिल्डर है, या तो वर्डप्रेस का ब्लॉक एडिटर आप यूज कर सकते हैं, या एलिमेंटर यूज कर सकते हैं, या बीवर बिल्डर यूज कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा कंपैटिबल जो सॉफ्टवेयर है, जो बिल्डर है, वो एलिमेंटर है। एलिमेंटर वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला आई गेस वेब बिल्डर है दीज डेज। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्या है इसके बारे में बताएंगे, इससे मैं एडिट करके भी बताऊंगा आपको, फिर बाकी तुम धीरे धीरे आगे सीख सकते हो अपने आप सब लोगों को ये सब अंदाजा हो जाएगा वंस एक बार आपने स्टार्ट करना है और वेबसाइट को फ्रंट एंड पे लेकर के आना है, जैसे कि हम अभी लेकर के आए। अब देखिए यहाँ पर थोड़े से टेम्पलेट दिखाई देते हैं आपको, ई कॉमर्स के भी दिखाई देंगे और पर्सनल वेबसाइट के भी दिखाई देंगे, हम बिजनेस के भी यहाँ पर चला सकते हैं, ठीक है ना। कोई एजेंसी है तो हम एजेंसी यूज करेंगे, होटल एंड ट्रैवल की कोई वो चीज बना रहे हैं तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ डायनेमिक नहीं होगा, ये डायनेमिक नहीं होगा, ये आपका ऐसा होगा कि आपको फ्रंट एंड दिखा देंगे कि भी ऐसा कि भी आपकी एक सर्विस है, जैसे आपने वेबसाइट डिजाइन की सर्विस है आपकी, या फिर आपकी लोगो डिजाइन, या फिर मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी है कोई, या फिर आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, कुछ भी हो, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की आपको कंटेंट मिलते हैं। तो जैसे ऑनलाइन स्टोर है, शॉप है, जो भी है, स्पोर्ट्स स्टोर है, बुक स्टोर है, उससे रिलेटेड यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आपको दिखाई देते हैं। देखिए कुछ प्रीमियम है जो पेड होते हैं, ऑब्वियसली जो बहुत सुंदर टेम्पलेट होते हैं वो पेड होते हैं, उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं। ये डिजिटल एजेंसी का है और ई कॉमर्स के लगभग टेम्पलेट जो है एक आधे आपको मिलेगा यहाँ पर, जो आपको बेटर उसमें मिलेगा। अब यहाँ डिजिटल एजेंसी के ज्यादा है, आप देख रहे हो, तो ये थोड़ा सा है, एक दो जो प्रीमियम नहीं होंगे, है ना, बाकी सारे के सारे लगभग प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं। तो आप इनमें से कोई एक चूज करेंगे, मैं ये चूज करना चाह रहा हूँ और ये बेटर है एक, है ना, टेम्पलेट। चाहे यहाँ पर कार वॉश लिखा हुआ है, आपको जरूरत नहीं है कि भी आप इसके नाम के बारे में जाए, आपको स्ट्रक्चर चाहिए, इमेजेस आप लेटर ऑन चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो कोई एक चीज चूज करते हैं, मैं बिजनेस वाले में जाता हूँ और एजेंसी के चेक करते हैं, क्योंकि जो अच्छा है वो हम चूज करते हैं। ये सुंदर है दिखने में, रूफिंग एजेंसी, तो ये भी कर सकते हैं। और ये देखिए ये क्रिएटिव है, आइडियाज वाला,
तो इनमें से जो आपको सही लगे वो चूज कर लीजिए। जहां प्रीमियम लिखा है डोंट गो फॉर दैट, दे विल आस्क फॉर मनी, ठीक है। और ऐसा कुछ करना जरूरत नहीं है, आप बिना पैसा खर्चा किए भी अच्छा वो बना सकते हैं। तो कोवर्किंग स्पेस, वंडरफुल गिफ्ट, ये आपका अर्थ का है। तो चलिए एक चूज कर लेते हैं, ये चूज कर लेते हैं। तो मैंने इस पे क्लिक किया। नाउ यू कैन सी अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन द बैकग्राउंड, ठीक है, ऐसे, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहां से ये लोगो पहले चेंज करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये लोगो है। तो अगर आपके पास लोगो है तब तो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, उसे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। मैंने एक लोगो बना करके रखा हुआ है, मैं शो करा देता हूँ। था तो यही, ओके, ये डाल देते हैं। एक बार चेक करते हैं कि देखते हैं दिखता है या नहीं। सिलेक्ट किया और यहाँ पर इट शुड अपीयर, है ना। कंटिन्यू कीजिए और कंटिन्यू। अब यहाँ पर मैं अपना नाम डालूंगा, क्योंकि मैं ये टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ। दे वांट माय इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन सेंड मी न्यूज़लेटर्स वीकली, और दे कैन सेंड मी ऑफर्स ऑफ द पेड टेम्पलेट्स एज वेल। कभी मेरा दिल कर जाए कि नहीं यार थोड़ा सस्ता ही है, खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिस वे दे कैन रन देयर बिजनेस। तो यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ यथार्थ। माय वर्किंग ईमेल जो मैं डालता हूँ, बिगिनर हूं तो बिगिनर ही डालना चाहिए मुझे। और ये माई सेल्फ माई कंपनी का है, आई अग्री एंड देन सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। अब ये इंस्टॉल कर रहा है, और इंस्टॉल क्या कर रहा है, स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है ना। वो प्लगइन जो हम डाल चुके हैं अब उसका स्टार्टर जो है ये इंस्टॉल कर रहा है। इट टेक सम टाइम और डन, 100% हो चुका है। एंड चलिए एक अच्छी सी एनिमेशन के साथ, और 17 सेकंड में पूरा हो गया ये बताया इसने, और हम वेबसाइट को व्यू करते हैं। लेट्स सी आवर फर्स्ट पेज देन। जो हमारा पहले वाला था वो चला गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो लोगो जो चेंज हो गया है मैंने जो रखा था। और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसको, साइज हम बार इसको कस्टमाइज करेंगे जब हम इसको कर सकते हैं यूज, ठीक है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, ओल्ड रह गया। और अब देखिए ये हमारा जो पेज है वो फर्स्ट पेज लग गया है यहाँ पर। यू कैन एडिट दिस पेज विद एलिमेंटर नाउ। इतना समझ आ गया सबको जो हमने अभी तक किया? सबको समझ आ गया है सर? थोड़े क्वेश्चंस है बीच में। हाँ वो मैं अभी ले लेता हूँ, बाद में लेंगे। हाँ जी सर, हाँ जी, सब आ रही है, तो आई थिंक एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। हैप्पी, एवरीवन हैप्पी। सो देखिए, हाँ थैंक यू सो मच। तो देखिए मेरा थोड़ा सा एक्चुअली ना मैं अभी सभी के क्वेश्चन रीड भी कर लेता हूँ, साथ साथ बता देता हूँ। देखिए मैं आपको, मेरा जो आज मकसद था वो आपको एक स्टार्टर वेबसाइट सिखाने का था। अगर मैं ई कॉमर्स की तरफ चला जाता तो शायद आपको ये उतना अच्छे से समझ नहीं आती, क्योंकि उसमें थोड़े से वर्किंग स्टाइल अलग है, उसमें गेटवे लगाना पड़ता है। मुझे याद है एक बार स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में कुछ साल पहले एक बार ऐसे सेशन दिया था, तो उसमें मैंने गेटवे के बारे में बताया था, शायद पेयू मनी का या किसी का। तो हमने गेटवे के बारे में जाना था। तो वहां पे भी आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं एक्चुअली, तो वो कुछ चार्ज लेते हैं। यस तमन्ना शर्मा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर मेरी वेबसाइट है avya.com। आव्या, हाँ, AAVY। ओके। सो होता क्या है कि व्हेन समबडी सर्च अबाउट इट ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, एक सिंगल ए हो जाता है, बी की जगह वाई हो जाता है, लाइक दैट। तो हाउ कैन वी रिजॉल्व कि मतलब कोई गलत टाइप करे तो भी हमारी ही वेबसाइट आए? देन वो तमन्ना, वो पता है क्या है, वो कहाँ पे चले गया मैं बताता हूँ। एक्चुअली उसमें डोमेन नेम की कमी नहीं है। अच्छा, ठीक है। वो एक्चुअली आपकी वेबसाइट उतनी पॉपुलर नहीं है, समस्या ये है ना। अब वो पॉपुलर कैसे हो,
हमने क्या किया, एक मोर जो है वो देख लिया है, वो जंगल में नाच रहा है, अब उसको शहर में लेकर के आना आपको, है ना। जंगल में उसको बहुत कम लोग देख सकते हैं, लेकिन शहर में अगर सर्कस में ले आए तो बहुत से लोग देख पाएंगे, है ना। तो इस चीज को ये समझो कि मैं बात करना चाह रहा था कि आप उसकी वेबसाइट की प्रमोशन करो, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट का SEO जिसको बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप करा सकते हैं। बहुत सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज ऐसा काम करती हैं और ये कुछ मंथली चार्ज लेती हैं आपसे, लेकिन इतना है कि आप का एक जो वेब एड्रेस है वो पॉपुलर होना शुरू हो जाता है, उस पे लाइक्स आने शुरू हो जाते हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू व्हाई डोंट यू ट्राई एंड मतलब आप डेली एक पोस्ट जरूर डाला करो, उसकी कुछ बैक लिंकिंग्स होती है जो की जाती है वेबसाइट पे। अगर आपने कोई ब्लॉग लिखा जैसे, है ना, उस ब्लॉग को रिलेटेड ब्लॉग्स की वेबसाइट पे जाइए और कमेंट्स में जाकर के पोस्ट करें। तो सी ये छोटी छोटी चीजें हैं, इफ यू रीड अबाउट दीज, अगर आप सारा कुछ खुद से करना चाहते हैं तो मुश्किल ही हो पाएगा, क्योंकि एक एक्सपर्ट की जरूरत है आपको। अगर आप सीखेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और हो सकता है आप उतना इस लेवल पे अपने बिजनेस पे ज्यादा काम करें, प्रोडक्ट्स पे ज्यादा काम करें, आप लेट अदर्स हैंडल कि आप वेबसाइट का प्रमोशन क्या है ना, कैसे करना है, राइट। यू नीड एन SEO ऑफ द वेबसाइट एंड गूगल प्रेजेंस आपको थोड़ी बनानी चाहिए अपनी, साथ साथ आपको ब्लॉग्स लिखते रहना चाहिए अच्छे कंटेंट के साथ में, राइट। एंड यस, और देखिए पॉइंट्स और भी हैं कुछ परचेज है, विच मेजर पॉइंट्स। अच्छा ये तो पुराना है, ब्लॉग साइट ओवर वर्डप्रेस बट डिडंट परचेज एनी होस्टिंग प्लान डिफरेंस। नो, वो भी मैंने आंसर कर दिया। ये तो हम कर चुके हैं। शॉपिफाई एक और है जिसके के बारे में लिखा गया होगा, शॉपसी। अच्छा, एक शॉपिफाई है और वो भी एक ई-कॉमर्स बिल्डर है, और उस पे भी आप अपना ये होस्ट कर सकते हैं, बट वो पैसा बहुत लगता है, उसमें बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। सर्विस बिजनेस के लिए बेटा आपको अगर करना है तो वर्डप्रेस इंस्टॉल कीजिए, अपनी सर्विसेज ऐसे शो कराइए जैसे मैंने वेबसाइट लगाया है। उसके नीचे सेक्शंस में आप कुछ भी लिख सकते हो ऑफर सर्विसेज के अंदर, जैसे आपकी मान लीजिए आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो उसमें उससे रिलेटेड सर्विसेज आप वहाँ पे शो करा सकते हैं। और so we had purchased domain from Namecheap, ठीक है। So sir, do we need to change the domain? No, you need not to change the domain. No. You need not to change the domain. आपको नेम सर्वर्स होते हैं कुछ, वो लगाने होते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस है, वो मैं बता दूंगा आपको। हालांकि जहां से आप डोमेन परचेज करते हैं ना, होस्टिंग के नेम सर्वर्स होते हैं कुछ, वहां पर जाकर के प्लेस कर देंगे और आपका हो जाएगा। विजिट योर वेबसाइट पे हम क्लिक कर चुके हैं गेस, या इसको बंद कर दें, इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एक नेम सर्वर्स होते हैं जो आप यहाँ पर जाकर डोमेन में जाकर के चेंज, आपकी डोमेन है ना जैसे, उसमें जाकर के कर सकते हैं। तो होस्टिंग है यहाँ, और ये डैशबोर्ड है हमारा। मैं इससे बाहर नहीं आना चाह रहा था, एक बार के लिए हम एक बार इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ उसके बारे में। तो जहां से आप होस्टिंग ले रहे हैं, मान लीजिए आपने GoDaddy से होस्टिंग ले ली, होस्टिंग के अंदर आपके कुछ नेम सर्वर्स देते हैं, ठीक है। तो वो नेम सर्वर कॉपी करने होते हैं, 1 और 2 दोनों को कॉपी करके डोमेन जहां पर रजिस्टर्ड है वहां जा करके डालने होते हैं एक जगह पे। तो ये बहुत इजी स्टेप है, इफ यू वांट टू गूगल इट, यू कैन गूगल इट, हो सकता है। अदरवाइज आप होस्टिंग भी वहां से ले लें फिर, ठीक है। तो फिर आपका कोई नेम सर्वर्स का इशू नहीं रहेगा। तो you can actually migrate your domain as well if you want to, ठीक है। तो वो भी एक प्रोसेस है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग तरह से होता है। अभी के लिए हम ये देख लेते हैं इसको कैसे एडिट करना है, क्योंकि फिर ये 2 घंटे का हो जाएगा आपका। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, किसी के पास से बहुत शोर आ रहा है।
माइक ऑन है मैम. Request everyone to please अपने आप Alright. Alright. Sorry. मैंने actually if we use code for website instead of using theme, how we can upload on hosting? See, बहुत आसान है. ये तो और भी आसान है. आप क्या करते हैं कि आप फाइल्स बनाते हैं उस समय HTML की या Bootstrap की आप वो आप सर्वर पे पब्लिक HTML में रख देते हैं. फिर आप PHP या जो भी आपका टेक्नोलॉजी है, .NET है, जो भी है, जिसको भी यूज करना चाहें उसकी फाइल्स क्रिएट करते हैं .php एक्सटेंशन से और फिर आप अपना काम करते हैं. बट हाँ, उसमें बहुत ज्यादा फिर आपको कोडिंग की जरूरत पड़ती है. इंटरेक्टिव नहीं होता, टाइम टेकिंग है. अगर आप डेवलपर नहीं है और वो आप वो टेक्नोलॉजी नहीं जानते, देन यू वोंट बी एबल टू क्रिएट इट, राइट? Right. For mykids.com, we work for student documentation where privacy is priority. So you can suggest me any strong web hosting. That's देखिए, Bluehost is a good hosting company. GoDaddy भी बहुत reliable है. ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर कोई अटैक आ जाता है. Even they provide some kind of security as well. तो आप अगर सिक्योर वेबसाइट चाहते हैं तो मेक श्योर कि SSL हो रखा हो डोमेन पे, यानी कि SSL वाली सिक्योर होस्टिंग लें, जैसे HTTPS जहां पर आपको मिले, राइट? तो फिर वो थोड़ा सा आपका वैसे भी ठीक रहता है. SSL लगा हो तो वेबसाइट पे वैसे भी कोई अटैक नहीं आता, व्हाटएवर आप कोई भी यूज कर रहे हो, ठीक है? जैसे कि इस पे SSL नहीं है, जो यथार्थ वाली है, इस पे SSL आई थिंक कनेक्शन इज सिक्योर, तो हो सकता है मैंने ले रखा हो इस पे SSL. तो ऐसा होता है जो ये जो HTTPS होता है ना, ये जरूरी होता है. इसके लिए आपको SSL के अलग चार्जेस देने पड़ते हैं. अदरवाइज आप थोड़ा सा डेवलपमेंट जानते हैं तो SSL 3 महीने के लिए एक फ्री वाला भी आता है और उसको बार बार रिन्यू करना पड़ता है फिर आपको. तो खैर वो फिर ज्यादा डिटेल्ड हो जाएगा. चलते हैं आगे. एडिट विद एलिमेंटर में जाकर के इसको एडिट करना आप सीख सकते हो. राइट क्लिक कीजिए, यहाँ जाइए और यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो. एक्चुअली यहाँ एडिट करना सबसे आसान काम है. इट्स जस्ट लाइक कि आप एक वर्ड फाइल के अंदर एडिट कर रहे हैं. This way you can open it और सॉरी इसको क्लोज करते हैं. यहाँ से न्यू नहीं देखना मुझे. यहाँ देखिए, ये आपको खुद बताता है, गाइडिंग टूर पे ले जाता है. अगर मैं वो बंद नहीं करता तो वो आपको बता देता कि कैसे कैसे करना है. जस्ट सोचिए कि सारी की सारी चीज आपके सामने ऐसे है, अलग अलग ब्लॉक्स में. आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चेंज करना है. सी, इफ यू वांट टू चेंज द पिक्चर, you can change the picture. Just click on this image and you will see the image here. और choose image के ऊपर क्लिक करें. आप यहाँ पर कोई भी इमेज डाल सकते हैं. अपलोड कीजिए, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए इमेज और स्टडी मटेरियल कहाँ है मेरे पास, कुछ होगा. पर्सनल डेटा, इमेजेस, नो like this. स्टडी मटेरियल. चलिए इसमें देख लेते हैं. कुछ इमेजेस पड़ी है मेरे पास और मैं यहाँ डाल के दिखाता हूँ आपको इमेजेस. कैसी इमेज है वो भी देखना पड़ेगा. अगर मैं नॉर्मली ये डालता हूँ, चलिए, तो ये बस मैंने चूज की इमेज अपलोड कर रहा हूँ, ये सारी यहाँ आ जाएगी. हाँ, अब ओके कीजिए, सिलेक्ट एंड दैट्स इट. यू कैन चेंज द इमेज इन हियर. देखिए ये इमेज यहाँ पर चेंज होगी. हाँ, ऑफ कोर्स हाइट वैसी रहेगी, इसकी हाइट है ना, फुल हाइट है तो मैंने फुल रखी हुई है. आप थंबनेल करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये फुल ज्यादा बेटर रहेगी. क्यों? क्योंकि कस्टम भी डाल सकते हो अगर आप हाइट कम करना चाहें तो. हाई करते हैं तो ये हाइट कम होगी 200 के आसपास, है ना, 200 हाइट है. तो मतलब कहने का है कि एक पूरे सेक्शन के अंदर फिर ये डिफरेंट लगेगी. तो इससे अच्छा है कि इसको आप फुल पे रखें. जितना ये बाय डिफॉल्ट साइज ले ले उतना बेटर. और फिर आप दूसरे वाली इमेज पे जाएं, यहाँ से इसको क्लिक करें,
आप अपलोड कीजिए, इधर दूसरी इमेज आप डाल सकते हो। लाइक अब ये चूज की थी तो हम कुछ और चूज कर लेते हैं। ओके ओके, बट लेट्स चूज दिस। कोई सेम हाइट की इमेज हो तो वो बेटर होता है ना। आपको अगर फोटोशॉप नहीं आता है तो मैं नहीं सिखा सकता, बट पेंट के अंदर आप बराबर हाइट की इमेजेस काट के रख सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जम गई है इमेज, हम अपडेट करते हैं जैसे ही यहाँ से आप इसको क्लिक करके रखें प्रीव्यू को, तो जैसे ही आप यहाँ पे कुछ अपडेट करते हैं यहाँ अपने आप ही चेंज हो जाता है वो। सी यू कैन चेंज द इमेजेस लाइक दिस। लर्न मोर के बटन है, बटन के क्लिक के ऊपर आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे लिंक लगा दीजिए उस चीज का, तो मतलब www जो भी लिंक आप जिस जगह पे भेजना चाह रहे हैं वो पेज का लिंक लगा दीजिए और अपडेट कर देंगे। इसी तरह से हम कोई टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, वी कैन चेंज द टेक्स्ट एज वेल, राइट, ऐसे। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ से टेक्स्ट चेंज करें। यहाँ से चेंज करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर चेंज करना चाहे तो हम कर सकते हैं। This is a beautiful website. क्या तो यहाँ चेंज हो गया लाइक दिस। जैसे ही अपडेट किया यहाँ ये ऑलरेडी रन कर चुका है और चेंज हो गया। इट मींस ये जस्ट प्रीव्यू शो करा रहा है यहाँ पर जो भी चेंज हो रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे चेंज होता हुआ देखना है तो फिर हमें यहाँ पे यानी कि मेन डोमेन पे जो लाइव है हमारी साइट उस पे चेंज करना है, तो फिर हमें यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं रिफ्रेश कैसे करना है, ये सारी चीजें। अब बैकग्राउंड इमेज को चेंज कैसे करना है ये देख लीजिए। ये बहुत बड़ी इमेज है और फ्रंट की इमेज है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इस इमेज को भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक किया सेक्शन पे और यहाँ आप देख सकते हो स्टाइल्स में जाएंगे और यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं इमेज। इफ यू वांट टू रिप्लेस दिस इमेज विद समथिंग एल्स you can choose it like if I want to choose this with a bigger image like this। अगर मैं इसको चूज करता हूं तो देखें हमने इसको चेंज कर दिया। यहाँ पर इमेज दूसरी अपडेट कर दीजिए। यहाँ इमेज कौन सी थी, ये वाली थी। आप चेक करते हैं, सी दिस वे यू कैन चेंज द इमेज, यू कैन चेंज द टेक्स्ट। मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया आपको कैसे इसको चेंज करना है। एक लास्ट चीज और देख लीजिए, यहाँ पर कस्टमाइज किया जा सकता है। राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज किया, ये हमने पहले भी किया था। यहाँ पर थीम के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज करते हैं। कुछ ऑप्शंस जो हैं हेडर फुटर के आपको यहाँ मिलेंगे। अब जैसे हेडर है वहां से कस्टमाइज नहीं किया जा सकता, देयर इज नो हेडर यहाँ पर कि हम उसको कस्टमाइज कर सकें, लेकिन यहाँ से कर पाएंगे। और फिर आप यहाँ पर देखिए हेडर बिल्डर दिख रहा है आपको, ये साइट का लोगो है, इस पे क्लिक करेंगे। मैंने जैसे बताया था ये वाला है ना, तो ये हमारा साइट का लोगो है। और ये मैं रेटिना लोगो जो है रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से हमने इसको यूज करना है। अब डिजाइन पे जाओ और ये मार्जिन वार्जन होते हैं कि ऊपर से कुछ मार्जिन देना है, ये सब आप थोड़ा सा करके देखेंगे ना तो यहाँ लाइव होता हुआ दिखाई देगा। राइट साइड में आपकी नेविगेशन है। ये नेविगेशन जो होती है इनके बारे में मैं एक बार थोड़ा सा बता दूंगा। लोगों की विड्थ में बढ़ा देता हूँ, मैं 200 के आसपास कर देता हूँ या 225 के आसपास। पब्लिश करते ही हमारा यहाँ पर हमने रिफ्रेश करना है और लोगो जो है हमारा बढ़ जाता है, यूजुअली बढ़ जाता है। अभी क्या हुआ है 225 लोगो विड्थ, रेटिना लोगो और डाल देता हूँ। ओके मुझे दोबारा करना पड़ेगा इसको। एनीवेज इसको चेंज करते हैं, यहाँ से फिर से डालते हैं रेटिना लोगो पे और देखिए यहाँ बड़ा आ गया ये। ठीक है, आपको रेटिना लोगो जो है वो यूज रखना ही रखना है,
ठीक है, तो वो आपको वहां पर रखना ही चाहिए। ये यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, कुछ और ही सिस्टम है इसका यहाँ पर, इसीलिए नहीं हो रहा है कुछ, या तो साइट का इससे मिनट कभी कभी इमेजेस जो है वो कैशे में भी चलती हैं, तो इसको सोचना पड़ेगा कैसे आएगा। लेकिन होता यहीं से, अगर आप यहाँ से विड्थ बढ़ा देते हो इसकी तो ये बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये जो आपका डिवाइस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करनी है तो ऐसे चेंज करेंगे। यहाँ पर आप लोगो विड्थ अगर मोबाइल पे रखना चाहते हैं तो मोबाइल के लिए अलग है 100 पिक्सल, और फिर उसके बाद अगर आप मेन डिवाइस पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ से बढ़ा सकते हैं इसको, लाइक दिस बढ़ना चाहिए, बट दैट्स फाइन। लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हो यही एक तरीका है जहां पर आप अपना सारा एडिट करते हैं। साथ साथ डिजाइन के अंदर भी जा करके आप कुछ कुछ चीजें यहाँ डाल सकते हैं। एंड देन फिर आते हैं बटन पे, प्राइमरी मेन्यू पे। ये आपका प्राइमरी मेन्यू है ये वाला। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसकी डिजाइन चेंज कर सकते हो। डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ पर आप बॉर्डर विड्थ तो ये सब चेंज कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, और मेन्यू के कलर और ये सब चेंज यहाँ से किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की कि आपके पास पेज जो है वो कैसे आप बना सकते हो। तो बस लास्ट यही है कि आपको पेज बनाने आने चाहिए। थोड़ा सा डैशबोर्ड में जाएंगे वापस, और डैशबोर्ड में जा करके यहाँ पर पेजेस आप जो है बना सकते हो। यहाँ पेजेस का सेक्शन है, ये रहा ऑल पेजेस। ये हमारे कुछ पेजेस हैं जो मेन्यू के पेज हैं, और यही पेज यहाँ भी है। अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ देखेंगे तो मेन्यूज पे राइट क्लिक कीजिए, अगली टैब में ओपन कीजिए। तो ये है हमारे मेन्यूज। प्राइमरी मेन्यूज जो है जो ऊपर शो हो रहे हैं वो ये वाले हैं। अगर मैं इसमें से एक भी आइटम को डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से राइट क्लिक करूँ, इस पे क्लिक करूंगा, डिलीट कर दूंगा, प्रोजेक्ट्स वाला पेज चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई पेज अगर आपको यहाँ लगाना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आपने कोई पेज नया बनाया, ऐड न्यू, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एक पेज, ऐड न्यू, और इसको बोल देता हूँ कि नाम दे देते हैं गैलरी। गैलरी नाम दिया, पब्लिश कर दिया। खाली मैं इसमें कोई कंटेंट नहीं डालने वाला हूँ, बहुत लंबा काम हो जाएगा फिर। तो ये मैंने गैलरी एक पेज बनाया, ठीक है, पब्लिश हो चुका है, व्यू कर सकते हैं पेज को, बट यहाँ पर शो कराना है, इसमें आ जाएगा वो। जैसे ही पेज बनता है वो यहाँ पर आ जाता है। अब इस पे क्लिक करो और ऐड टू मेन्यू कर दो, ये यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको शफल भी कर सकता हूँ, गैलरी को ऊपर ला सकता हूँ, कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, है ना। लास्ट में यहाँ पर रखते हैं कॉन्टेंट से पहले, कॉन्टेक्ट से पहले सेव कीजिए और आप चेक करते हैं। इट शुड अपीयर हियर, क्लिक कीजिए और गैलरी पेज यहाँ पर आएगा, जिसको आप एडिट कर सकते हो। उसके अंदर फिर कंटेंट डाल सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आपने आज बनानी सीख ली। यू कैन चेंज द थिंग्स हियर। आप चाहें तो फुटर को भी वैसे ही कस्टमाइज कर सकते हैं। आप जाएंगे कस्टमाइजर में और वहां से उसको चेंज करेंगे। फुटर को भी आप कस्टमाइज ऐसे ही करेंगे जैसे हमने हेडर को किया था। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन एडिट हियर। फुटर बिल्डर पे जाएं और नीचे यहाँ देख सकते हो, यहाँ फुटर है। अब विजिट्स को चेंज कर सकते हैं, कॉपीराइट चेंज कर सकते हैं। कॉपीराइट में आप अपनी कंपनी का नाम डाल देते हैं, साइट का टाइटल आएगा, वो ऑलरेडी हमने डाला ही हुआ है। देखें, यथार्थ शर्मा, ये साइट का टाइटल था, याद होगा आपने, हमने यही रखा था नाम, है ना। और यहाँ आप ईमेल आईडी अपना चेंज कर सकते हो, फोन नंबर चेंज कर सकते हो। अगर कोई और फुटर चाहते हो तो वो भी बनाना आप सीख सकते हैं। बट मेक श्योर कि जैसे
देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज है, ये अगर आप कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो आपको सीखना पड़ेगा इसको। थोड़ा सा वीडियोस देख सकते हैं इंटरनेट पे, अच्छा सोर्स आपको मिल जाता है। तो ये तो आपका पूरा वेबसाइट था जो आप लॉन्च कर सकते हो विदाउट एनी हैसल। ये हैसल फ्री है, आप इस तरह से बना सकते हो। अगर आपको कहीं बटन्स को हटाना है, वो करना है, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। कस्टमाइजर में जाइए, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ आपको दिख रहा होगा बटन, इसको आप हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो इस वाले बटन को स्पेसिफिकली। तो यहाँ से आप इसको हटा दीजिए। You need not need to be there। आप जाएं तो इसका डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। अगर कोई आपको इसमें चेंजेस लाने हैं तो वो ला सकते हो। यहाँ से 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा पैडिंग, ठीक है। बिल्कुल 0 करना है तो आपको सारे को इकट्ठा 0 करना पड़ेगा और गॉन, ठीक है। पब्लिश कर देंगे तो वो बटन वहां से जा चुका है। साथ साथ आप राइट, तो इस तरह से आप चाहें तो इस बटन को यहाँ से भी डिलीट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए उसको हटा दिया। कल को चाहिए तो हम वापस से लगा सकते हैं। हालांकि आप फिर भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपने क्लिक करना है और बटन ऐड कर देना है, बस हो गया। फिर उसकी आप टेक्स्ट लिख दीजिए, बताएगा वो आ गया। पैडिंग वेडिंग डालनी है डिजाइन में जाकर के फिर से डाल सकते हैं। और यहाँ से जैसे यहाँ पैडिंग है तो मैं यहाँ पर 10 की डाल देता हूँ टॉप से, और राइट लेफ्ट से 30 and 30। That's it, done। तो ये था हमारा आज अब तक का सारा जो आपने वेबसाइट बनाई। लास्ट में आप फिनिश कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कंटेंट को, जैसे अभी करके बताया। नेक्स्ट इज लास्ट जो इसका कोट है वो यही है, द ट्रू एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर नॉट एन एक्सक्यूज मेकर। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि अगर आप ये कहें कि मुझे नहीं आता, आप सीख सकते हैं। आप स्टार्टिंग में अपना काम धीरे से बढ़ा सकते हैं, कुछ पैसे आप बचा सकते हैं। देन लेटर ऑन अगर आपको कोई और कस्टमाइजेशन चाहिए तो थोड़ा बहुत प्राइस आप पे कर सकते हैं कि ये आपको टेक्नोलॉजी थोड़ी सी हमने को चेंज करना है, हल्का सा इसमें ई कॉमर्स डालना है या कुछ करना है, तो यू कैन हायर अ डेवलपर। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कोई जरूरत नहीं है, इनिशियल लेवल पे। तो डोंट मेक एक्सक्यूजेस, स्टार्ट टुडे, राइट। तो ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। It was a very nice session, and especially मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी, आपने हमें इतना ज्यादा टाइम दिया अपना। You know, we are very grateful to you, sir. Thank you. मैं request Thank you so much. Audience को session अच्छा लगा तो एक बार clap कर दे सब लोग, कुछ अपने emoji के साथ। Sir has given us so much of time. Thank you. Such a nice audience. Thank you so much, guys. Thank you so much. And trust me, it is very simple. And मैं जितना बता सकता था, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होने वाला ही था सेशन, क्योंकि एक वेबसाइट आप 1 घंटे के अंदर पूरी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप बना सकते हो लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे दिखाना भी है, क्वेरीज भी लेनी है, तो सारी चीजें आई न्यू इट। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया है, बट वही 1.25 घंटा या 1.5 घंटे में हमने खत्म कर दिया। इट्स गुड थिंग। Thank you, sir. In fact, chat box में भी आ रहा है, such a great session. Thank you so much. Thank you, Himanshu. Thank you so much. Towards the end, मैं बस चाहूंगी धर्मवीर सर, अगर आप एक vote of thanks कहना चाहते हैं, so you can do that. And with that, we will end the session. Regarding thank you very much for taking out the time, और आगे भी आप सेशन कराते रहेंगे। Thank you for the Thank you so much. information. Thank you. Thank you, everyone. Have a great day, and thank you again. Thank you for inviting me. Thank you. Have a great day, guys. Thanks.